السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب فی الایمان۔ حدثنا علی بن محمد التنافسی قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن سہیل بن ابی صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو الإيمان بضع وستون بابا أدناها إماتة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان، والحديث صحيح۔ عزیز طلبہ، آج کی اس درس میں ہم انشاءاللہ سنن ابن ماجہ کی حدیث جو کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باب ایمان کے تحت ذکر کیا ہے، تو حدیث کا دراسہ کرنے سے پہلے، حدیث کے متن کو تحلیل کرنے سے پہلے ہم ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کے معنی کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر جو مذاہب ہیں، جو فرق ہیں، انہوں نے کیا ایمان کو وہی ایمان مانا ہے جو سلف صالحین مانتے تھے، جس پر صحابہ کرام اور تابعین اعظام تھے، یا انہوں نے اس کے اندر کچھ ہیر پھیر کیے جس کی وجہ سے ان کا ایک الگ مذہب بنا۔ تو ان تمام چیزوں کو اور ان کے ہاں ایمان کی تعریف کیا، ان تمام چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو ایمان کے لغوی جو معنی ہیں، یہ آمنا کا مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنے کے، تصدیق کرنے کے۔ ایمان کے لغوی معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنے کے۔ اور اصطلاحی تعریف ایمان کی جو اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ہے، الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان، کی زبان سے شہادتین کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، اس کو زبان سے ادا کرنا، والتصدیق بالجنان، اور جو بات آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، آپ کا دل اس پر مہر لگا کر کے اس کو تصدیق کرے، اس کو قبول کرے۔ یہ نہیں کہ آپ کے زبان اور دل کے اندر تضاد ہو، زبان سے آپ کچھ اور ظاہر کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل اس بات کو، اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے۔ کما یفعل المنافقون، كما كان يفعل المنافقون أنهم إذا جاءوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فهم يظهرون الإيمان ويقولون أنهم مؤمنون، ولكن إذا ذهب وصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لقي المشركين ماذا يقولون؟ هم يقولون نحن معكم ونحن نخدع المؤمنين، فأنزل الله سبحانه وتعالى السورة وقال هم ما يخدعون الله وكذلك هم ما يخدعون المؤمنين وكذلك هم ما يخدعون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هم يخدعون أنفسهم، هم يخدعون أنفسهم، کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ سے چیٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور دل کچھ اور نہیں، بلکہ جو بات آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں، آپ کا دل، آپ کا جنان، آپ کا قلب اس بات کی تصدیق کرے، اس بات کو قبول کرے۔ اس کے بعد کہا والعمل بالارکان، اور اسی طریقے سے جن جو اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں کو، جن اعمال صالحہ کو ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جن برائی کے کاموں سے، فحش کے کاموں سے،
मासियत के कामों से हमें रोका गया है, उनसे हम क्या करें, रुकें, उनसे हम क्या करें, रुकें। तो ये है तारीफ ईमान की अहलुस सुन्ना वल जमाआ के नज़दीक। और उसी में से अगर आप आगे बढ़ा सकते हैं, बाद लोग मतलब तारीफ को आसान बनाने के लिए और तमाम चीज़ों को, कि अमल जो है अहलुस सुन्ना वल नज़दीक के यहाँ ईमान में दाखिल है, और ये राजे मसलक है कि अमल जो है वो ईमान में दाखिल है, और यही अहलुस सुन्ना वल जमाआ का एतकाद है। उसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें बढ़ाते हैं, कहते हैं याती खमसुनूनात फी तारीफ ईमान अल-इक़रार बिल-लिसान व तस्दीक़ बिल-जनान वल अमल बिल-अरकान व यज़ीद बिताअत ar-रहमान व यनक़ुस बिताअत अश-शैतान। कि ईमान जो है वो ज़बान से शहादतैन के इकरार, और फिर उसी शहादतैन को दिल से तस्दीक करना है, फिर उन शहादतैन का जो तकाज़ा है, जिन चीज़ों को वो शहादतैन आपसे तकाज़ा कर रही हैं कि अब आप मोमिन हो चुके हैं, अब आप मुसलमान हो चुके हैं, तो मुसलमान होने के बाद, मुस्लिम होने के बाद आपके ऊपर चंद चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बना करके भेजा, तो कहा है मुआज़, जो सबसे पहली चीज़ फलयकुन अव्वलु मा तदऊहुम इलैहि शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फइनहुम अताऊक लिज़ालिक फअलिमहुम अन्न अल्लाह अफ्तरदा अलैहिम खम्स सलवातिन फी कुल्लि यौमिन व लैला फइनहुम अताऊक लिज़ालिक फअलिमहुम अन्न अल्लाह अफ्तरदा अलैहिम सदक़तन तुख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। तो इस तरीके से जब आप शहादतैन का इकरार कर लेते हैं अपनी ज़बान से और उसको कबूल कर लेते हैं अपने दिल से, तो उसके बाद आपके ऊपर तकालिफ़ शरिया वाजिब होती हैं, फर्ज होती हैं। इन शहादतैन अमल का जो दुनिया के अंदर रह करके जो इस्लाम जिन अमल को कुरान और हदीस के अंदर जिन अमल को करने को कहा गया है, उन तमाम चीज़ों का तकाज़ा करती है, आपको उन तमाम चीज़ों को करने हैं, और ये भी अमल के ईमान के अंदर दाखिल है। अमल भी क्या है, ईमान के अंदर दाखिल है। भी इंशाअल्लाह इस पर मुफस्सल बहस होगी आगे। उसके बाद कहा व यज़ीदु बिताअत ar-रहमान, और अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करते हैं तो क्या होता है, आपका ईमान, जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी से बंदे के ईमान में ताजगी होती है, बंदे के ईमान में ज्यादती होती है, उसका ईमान बढ़ता रहता है। और इसी तरीके से वयनकुस बिताअत अश-शैतान, और अगर बंदा कोई बुराई का काम शैतान के बहकावे में, शैतान के वसवसे के मुताबिक जो आता है उसके मुताबिक अमल करता है, तो उससे उसका ईमान कमी, उसके ईमान के अंदर नक्स और कमी आती रहती है। तो ये थी ईमान की तारीफ अहलुस सुन्ना वल जमाआ के नज़दीक। उसके बाद ईमान की तारीफ मुर्जिया के यहाँ क्या है। फिरक मुर्जिया वो लोग जो अमल को ईमान से मुअख्खर करके रखते हैं, जो अमल को ईमान से मुअख्खर करके रखते हैं, उनके यहाँ अमल जरूरी नहीं है। उनके यहाँ ईमान नाम है सिर्फ और सिर्फ किस चीज का, एतकाद। आप दिल से, दिल के अंदर एतकाद कर लें, दिल से एक्सेप्ट कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं है। उसके बाद आपको नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, सदका खैरात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के कोई भी मारूफ खैर भलाई के काम करने की ज़रूरत नहीं है। किनके यहाँ, मुर्जिया के यहाँ। किनके यहाँ, मुर्जिया के यहाँ। उनके यहाँ ईमान कहते हैं सिर्फ और सिर्फ दिल से कबूल कर लेना, दिल से मान लेना। अगर आपने मरतबा दिल से मान लिया, चाहे आप जबान से उसका इकरार करें ना करें, आप अमल सालिहा करें या ना करें, आप पक्के सच्चे मोमिन हैं। और इसी तरीके से जहमिया फिरका जो है वो भी ईमान कहता है उनके यहाँ तस्दीक। क्या है ईमान उनके यहाँ किसको कहते हैं, तस्दीक को। दिल से कबूल कर लिया अगर कोई बंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से मान लिया, पक्का सच्चा मोमिन हो गया, उसको अभी अमल करने की जरूरत नहीं है। और कर्रामिया जो फिरका है उनके यहाँ ईमान किसे कहते हैं, कर्रामिया जो फिरका है उनके यहाँ ईमान अन्नुत्क को कहते हैं। किसको कहते हैं, अन्नुत्क, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप जबान से शहादतैन का इकरार कर लें, आप पक्के सच्चे मुसलमान हो गए। गोया कि इन लोगों के कौल के मुताबिक मुनाफिकीन भी पक्के सच्चे मुसलमान हैं। मुनाफिकीन भी क्या है,
पक्के सच्चे मुसलमान है, क्योंकि वो जबान से तो कहते थे कि ला नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और जबान से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का भी इकरार करते थे, लेकिन दिल से नहीं मानते थे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने के लिए कि हम मुसलमानों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से ये तमाम अमाल वो इस्लाम को जाहिर करते थे और अपने दिल के अंदर कुफ्र को छुपा करके रखते थे। तो ये क्या है, कर्रामिया के नजदीक सिर्फ और सिर्फ जबान के इकरार को ईमान कहते हैं। तो गोया कि इनके कौल के मुताबिक जितने भी मुनाफिकीन थे सब पक्के सच्चे मुस्लिम थे, पक्के सच्चे क्या थे, मुस्लिम थे। उसके बाद मज़ाहिब अरबा की तरफ लौटते हैं। मज़ाहिब अरबा में इमाम शाफई रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इन जुमहूर उलमा का जो कौल है अहले सुन्नह वल जमाआ का कौल कि ईमान की तारीफ इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान वल अमल बिल अरकान। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ईमान उनके यहाँ इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल जनान को कहते हैं। किसको कहते हैं? ईमान उनके यहाँ इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल जनान, यानी कि आपने ज़बान से इकरार कर लिया और उसके बाद दिल से उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। तो आप क्या हो गए? पक्के सच्चे मोमिन हो गए। वो अमल को ईमान के अंदर दाखिल नहीं करते हैं। हनफिया जो है वो अमल को ईमान के अंदर दाखिल नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग अमल को करने पर लोग उभारते हैं। अमल को आमाले साले, यानी कि अमल से छोड़ देना है, बल्कि कहते हैं दाखिल नहीं है, लेकिन आपको आमाले सालिहा करना है। आपको क्या करना है? अमाले सालिहा, नमाज रोजा जो भी कहे तकालीफ शरिया, उन तमाम चीजों को आप करना है। और ये लोग अमाले सालिहा को ईमान के अंदर बढ़ोतरी और ईमान के अंदर ज्यादती का सबब बदलाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ईमान अमल जो है ईमान में दाखिल नहीं है, लेकिन ईमान की ज्यादती का और ईमान के नमू का एक सबब है। तो ये थे मज़ाहिब, और उनके यहाँ ईमान कहते किसको है, ईमान की तारीफ क्या है, ये तमाम चीजें। उसके बाद अब मुंतकिल होते हैं जो राज तारीफ क्या है ईमान की, अहले सुन्नह वल जमाआ, और जो इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इन तीनों का मज़हब है। ये अहले सुन्नह वल जमाआ जो सहाबा किराम और तमाम सल्फ़े सालिहीन का मज़हब था, अल इक़रार बिल लिसान व तस्दीक़ बिल जनान वल अमल बिल अरकान। और अमल भी क्या है? ईमान में दाखिल है। अमल भी क्या है? ईमान में दाखिल है। अभी इस पर हम इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद ईमान के अरकान कितने हैं? ईमान के अरकान कितने हैं? ईमान के 6 अरकान हैं। कितने हैं? ईमान के 6 अरकान हैं। जैसा कि हदीस जिब्रील के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और पूछा, या मुहम्मद अखबिरनी अनिल ईमानी, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व अन तु'मिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा कि ऐ मोहम्मद, आप हमें ईमान के ताल्लुक से बतलाइए कि ईमान कहते किसे हैं, ईमान क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना। ये क्या है? ईमान के अरकान है। ये क्या है? ईमान के अरकान है, जो कि 6 हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना, अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना कितने चीजों को मुतज़म्मिन है? ये 4 चीजों को मुतज़म्मिन है। अगर इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे तो ये पूरा टाइम ले लेगा, तो इसे सरसरी नजर डालते हुए चलते हैं। तो अल ईमान बिल्लाह जो है वो 4 चीजों को मुतज़म्मिन है। अल ईमान बि वजूदिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, दूसरा अल ईमान बि रुबूबियतिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, तीसरा अल ईमान बि उलूहियतिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, अल ईमान बि अस्माइही व सिफातिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद पर ईमान लाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का रब मानने पर ईमान लाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक माबूद होने पर ईमान लाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात जैसा कि वारिद हुए हैं बगैर तमसील, बगैर तकीफ, बगैर तशबीह, बगैर तावील के, बगैर तातील के, उन पर ईमान लाना। और ये 4 चीजें
हुई। ये 4 चीजें हुई जो ईमान बिल्लाह को मुतज़म्मिन है। उसके बाद अल ईमानु अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही। दूसरी चीज क्या है, दूसरा रुकन क्या है ईमान का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों पर ईमान लाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब है कि हमको इस बात का इत्क़ाद करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मखलूक हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूर से पैदा किया है, और उनके कुछ अमाल हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए मुकर्रर करके रखा है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुती और फरमाबरदार बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन चीजों को करने का उनको हुक्म देता है वो फौरन उसको बजा लाते बगैर छू चरा के, और जिन चीजों से रोक देता है उसके करीब तक नहीं जाते हैं। और इसी तरीके से उन फरिश्तों में से जिनके जो अमाल हमको मालूम है या उनमें से जिनके जो नाम हमको मालूम है उनको उनके लिए उन नामों को साबित करना, जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिनका काम है वही और तमाम चीजों को लाना ले जाना, और इसी तरीके से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जिनका नाम मालूम हुआ सही हदीस से और इस कुरान के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको क़यामत के दिन सूर फूंकने के लिए मुकर्रर करके रखा है। और इसी तरीके से हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और इस तरीके से मलकुल मौत, तो ये 3-4 फरिश्ते जिनका नाम हमें मालूम है, और इनके नाम पर ईमान लाना कि ये फरिश्ते इनके नाम ये हैं और इनका वजूद है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नूरानी मखलूक है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूर से पैदा किया है। उसके बाद अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम आसमानी किताबों को जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है, चाहे उनका नाम हम जानते हो या ना जानते हो, इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा किताबें थी, अगरचे बाद में उसके अंदर तहरीफ, अगरचे उसके अंदर बाद में तसहीफ और तमाम चीजें हेर फेर वाक़े हो चुके, चाहे तौरात हो, चाहे इंजील हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे सूफ़े इब्राहिम हो, चाहे सूफ़े मूसा हो, यानी जिन जिन किताबों का नाम हमें आसमानी किताबें अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम जो नाजिल की गई थी उनके नाम जो हमें मालूम है उन पर हमें ईमान लाना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको अपने मुकर्रब और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको अपने चुने हुए और बुरगज़ीदा बंदों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको नाजिल किया, और उनकी आखिरी कड़ी आखिरी सिलसिला कुरान मजीद है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, मखलूक नहीं है। जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम को मखलूक कहेगा वो काफिर है, इस पर इजमा सलफ़ सालिहीन का इजमा है। और इसी तरीके से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है और हज़रत जिब्रील के वास्ते से हमारे आखिर नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और ये क़यामत तक बाकी रहे, क़यामत से कायम होने से पहले तक बाकी रहेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत से पहले इसको उठा लेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब की एक खुसूसियत ये भी है कि ये किताब तग़यीर और तहरीफ और तस्हीफ से महफूज रहेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली हुई है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो इन तमाम चीजों पर हमें ईमान लाना है। अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूलों पर ईमान लाना है। ईमान का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया किराम को दुनिया के अंदर मबूस किया, तमाम के लिए उनकी नबूवत को साबित करना है कि हाँ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी है। अगरचे जिनका नाम हम जानते हैं, जिनका उरूद कुरान के अंदर तकरीबन 25 अंबिया किराम का उरूद हुआ है, उनके नाम का जिक्र हुआ है, तो उनके नाम के साथ उनको मानना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रिसालत दी है। और इसी तरीके से उनकी शरीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के आने के बाद मनसूख हो चुकी है। हमें जिसकी शरीयत की तबा करनी है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद आखिरत के दिन पर ईमान लाना है। आखिरत के दिन पर ईमान लाने बहुत सारी चीजों को मुतज़म्मिन है। एक की कब्र, यानी कब्र के अंदर दफन किया जाना, उसके बाद बरज़ख की जिंदगी, उसके बाद दोबारा उठाए जाना, अल-बाअस बादल मौत, उसके बाद हिसाब किताब, उसके बाद मीज़ान, उसके बाद पुल सिरात, उसके बाद उसके अंदर जन्नत जहन्नम और तमाम चीजें जो इसके अंदर शामिल हैं, इन तमाम चीजों पर हमें क्या करना है, ईमान लाना है। और इस तरीके से कदर पर, तकदीर पर ईमान लाना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन की तख्लीक से पहले ही 50,000 साल पहले, आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम चीजों की तकदीर को लिख दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को हुक्म दिया उक्तुब काला माज़ा अक्तुब काला उक्तुब मकादीर अल खलाइक फकतबा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को हुक्म दिया कि लिख। कहा क्या लिखूं? कहा कि मखलूक के तकदीर लिखना शुरू को, तो उसने लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक चीज गौर करने का मकाम यह है कि क्या इससे पहले तकदीर मौजूद नहीं थी? तकदीर उससे पहले मौजूद थी, तमाम चीजें उससे पहले मौजूद थी, तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे पहले बना करके रखा था, मुकर्रर करके रखा था, लेकिन लिखी हुई नहीं थी।
تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ اس سے پہلے تقدیر نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے تقدیر لکھی ہوئی نہیں تھی، پھر اللہ رب العالمین نے قلم کو حکم دیا، پھر قلم نے تقدیر کو لکھا. تو یہ کہ تمام لوگوں کی تقدیر خیر و شر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو لکھ کے رکھا ہے. بندہ مجبور محض نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے بندے کو بھی اختیار دیے ہیں. فہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، فہدیناہ النجدین. تو یہ تھے ایمان کے ارکان. تو اور جو ایمان کے تعلق سے کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور تمام یہ چیزیں اور ایمان و اسلام میں فرق کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.